A very good morning to all of you. Welcome to the second module of Basics of SEO. Now, we have already done a lot of things. We have covered already a lot of things related to SEO. So as usual, before joining this website, there are some important instructions for the participants. All participants must join the meeting with their name. All the participants must have registered themselves before attending the course. All the participants must keep their videos on at all the times. Participants can use the chat box and raise their virtual hand for any query. If they have any kind of query, if they want to discuss something and you want to know more, they can write in the chat box. Attendance is mandatory during all the sessions. At the end of the course, participants will be required to appear in a quiz. Upon the successful completion of the course, participants will receive a certificate of the course completion. Thank you. In the last module, we have covered a lot of things like keywords, research we have already done. Then we have page speed, including mobile page speed also. Mobile friendliness we have covered. Then domain age, URL and authority, optimized content, technical SEO, user experience and links. All these things we have discussed one by one. In today's session, we are going to cover these important aspects of SEO like CDN, content delivery network, what is its importance, we'll discuss. How can we have the link of the content delivery network for developing modern websites? I will tell you. Then robots.txt file. I'll tell you what is the meaning of robots.txt file. We'll discuss about it also. And moreover, I will give you some examples also. You can even copy these examples if you are doing SEO. Then we have sitemap. What is the importance of sitemap? We'll discuss this thing also. How can we produce a sitemap? Types of sitemap. We'll discuss all these things in sitemap. Then site registration. You know, before using your website, before airing your website on the internet, you have to register your site so that different search engine can go through your website, what is going on there, and they can present the content on the internet in front of the client. How the site can be registered, ये भी हम लोग आज सीखेंगे, साइट को रजिस्टर कैसे करना है. एंड इवन मैं एक वेबसाइट आपके सामने रजिस्टर करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपने एक नई वेबसाइट को रजिस्टर करना है. देन ऑफ कोर्स रीडायरेक्ट इज देयर. रीडायरेक्ट के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि what is the redirect, why we have to use this redirect, what is the purpose, types of redirect. एंड आप लोगों ने देखा होगा कई बारी वो आपको एक लिंक आता है जब आप कुछ वेबसाइट को यूज कर रहे होते हैं, तो डाउनलोड अगर आप करते हैं तो योर डाउनलोड विल स्टार्ट इन 2-3 minutes. इफ नॉट स्टार्टेड, क्लिक दिस बटन. दिस टाइप ऑफ मेथड या दिस टाइप ऑफ पेज इज ऑल्सो डिस्प्लेड. तो वो क्या चीज है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं रीडायरेक्ट में, दैट आई विल आल्सो डिस्कस विद यू पीपल. एंड फाइनली ये कुछ एस्पेक्ट्स जो इसमें रहेंगे, लाइव एसईओ करेंगे हम लोग एक वेबसाइट का. लाइव एसईओ जो है इट इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस. कीप दिस थिंग इन माइंड कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक दिन में नहीं हो सकता ये. अगर आपने एसईओ करना है तो इट मे टेक्स मंथ्स, एटलीस्ट 3 months तो चाहिए किसी भी वेबसाइट को SEO करने के लिए. एंड एट द सेम टाइम द एजिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. एजिंग मीन्स साइट जो है वो थोड़ा सा ओल्ड हो जानी चाहिए, कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए, तभी वो गूगल पर हाई रैंक पे आना शुरू हो जाती है साइट. अदरवाइज आप उसका स्कोर जो है वो इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं, और वो मैं आपको शो भी करूंगा कि कैसे आपने वो शो करना है. इसके अलावा हम गूगल क्रोम की कुछ एक्सटेंशंस के बारे में भी रिव्यू करेंगे.
and we'll check how can we measure the score of a website on the basis of some parameters. We'll discuss all these things. So ये सेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. Be ready with your pen and paper. If you want to write some tools names, you can note down these tools name, because in future whenever you want to start with the work of SEO, अगर आप इसमें अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये टूल्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, सो दैट इन टूल्स की हेल्प से यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ SEO. मैंने लास्ट सेशन में भी आप लोगों को बताया था कि विद द हेल्प ऑफ SEO you can earn, if you are perfect in SEO and doing SEO, then you can earn monthly 70 to 80,000 very easily from just 2-3 websites or 4 websites. एंड इफ अगर आपके क्लाइंट्स जो हैं वो अब्रॉड हैं, बाहर की कुछ वेबसाइट्स हैं, तो यू कैन अर्न मोर. इसका जो एस्पेक्ट है कि कैसे आपने ये अर्निंग करनी है, इसके बाद फ्यूचर में हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, कैसे आप अपनी अर्निंग इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपना करियर इसमें परस्यू कर सकते हैं, कहां कहां पर आपको रजिस्टर करना होगा, कैसे यू कैन फ्लोट योर एडवर्टाइजमेंट. ये चीजें सारी की सारी हम लोग इन फ्यूचर हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट जो कमिंग जो हमारे SEO के सेशन रहेंगे उसमें हम लोग इसके बारे में सारा इलेबोरेट करेंगे. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क? A content delivery network refers to a geographically distributed group of servers which work together to provide fast delivery of the internet content. ये जस्ट एक बुकिश सी डेफिनेशन है. मैं सीधा शॉर्टकट में पॉइंट पे आता हूं कि क्या मीनिंग क्या है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का. देखिए स्टूडेंट्स की आप लोग जब भी कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो तो उस वेबसाइट का SEO करना पड़ता है आप लोगों को. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SEO? उस वेबसाइट के लिए आपको स्टाइलिंग करनी पड़ती है, CSS अप्लाई करना पड़ता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CSS? क्या मीनिंग क्या है CSS का? जब भी आप कभी वेबसाइट बनाते हैं तो नॉर्मल एक HTML आप यूज करते हैं जिसमें पूरा का पूरा कंटेंट आप मेंशन करते हो. एक बार कंटेंट अगर मेंशन हो गया उसके बाद उसको ब्यूटीफाई करना पड़ता है, उसको हम लोगों को पेंट, उसकी रेंडरिंग करनी पड़ती है कि उसका ये वाला कलर हो जाए, फोंट साइज उसका ये हो जाए, ब्ला ब्ला, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं. फिर उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे एनिमेशन की बात करें तो आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती है एनिमेशन करने के लिए, या jQuery यूज करनी पड़ती है. तो इससे होता क्या है, whenever a client we can say, आपकी वेबसाइट को अगर वो विजिट करता है तो आपकी वेबसाइट को पूरे के पूरे वो कंटेंट डिस्प्ले करवाने के लिए आपके ओरिजिनल सर्वर पर जा करके वहां से जो CSS वाला फोल्डर है वहां से CSS को पैरामीटर्स को फेच करके उसको रेंडर करना पड़ता है स्क्रीन के ऊपर. तो लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड. अदरवाइज कैसे स्पीड इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसकी स्पीड इस तरह से बढ़ा सकते हैं. लेट्स सपोज दैट कि आपने पहले से बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं ओपन की होंगी अपने सिस्टम पर, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, आपने पहले भी बहुत सारी वेबसाइट ओपन की होगी. इफ यू हैव ओपन अ वेबसाइट, इफ यू हैव ओपन अ नंबर ऑफ वेबसाइट, तो बहुत सारी वेबसाइट्स मॉडर्न ब्राउजर आजकल ऐसी होती हैं जिसमें बूटस्ट्रैप हम यूज करते हैं. तो बूटस्ट्रैप के लिए एक फिक्स CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट बन रखी है. बूटस्ट्रैप के लिए ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की भी फाइल बन रखी है. अगर ये दोनों फाइल बन रखी हैं तो ऑटोमेटिकली ये दोनों फाइल्स अगर आपने पहले से कोई वेबसाइट खोल रखी है तो आपकी कैशे में होंगी अवेलेबल. अगर ये फाइल्स आपकी कैशे में, यानी कैशे मतलब एक कंप्यूटर में मेमोरी होती है, वहां पर ऑलरेडी आपकी ये फाइल्स पड़ी हुई होंगी, तो कितना अच्छा हो कि हम सारा कंटेंट आपकी ओरिजिनल सर्वर से फेच करने की बजाय सिर्फ HTML वहां से फेच करें, बाकी जो बूटस्ट्रैप का कंटेंट है या उसका जो CSS है या जावास्क्रिप्ट है वो आपकी कैश मेमोरी में से उठा ले. अगर वो आपकी कैश मेमोरी में से उठा लेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी लोडिंग की, क्योंकि हर एक सिस्टम पर जो है ऑलमोस्ट वेबसाइट्स कभी ना कभी तो ओपन की होंगी ना. दिस इज द रीजन. सो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मतलब जो इससे रिलेटेड रिसोर्सेज हैं वो कई कंप्यूटर्स पर ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं. नियरेस्ट जो भी सर्वर या जो भी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूट मेरे पास सर्वर अवेलेबल होगा वहां से इन कंटेंट्स को फेच करके डिस्प्ले करवा दिया जाता है. इस तरह से आपकी वेबसाइट की स्पीड को एनहांस कर सकते हैं. सो CDN allows for the quick transfer of assets
needed for loading the internet content, including HTML pages, JavaScript files, style sheets, images and videos. तो इस तरह के वेब पेज के कंटेंट को अपलोड करने के लिए, सॉरी, लोड करने के लिए जब आप अपनी वेबसाइट को विजिट करता है, कोई क्लाइंट आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, तो उसके लिए वी हैव टू यूज CDN. तो इस तरह से आपकी वेबसाइट का जो स्पीड है, उसकी पेज स्पीड वो काफी एनहांस हो जाती है. अब बेनिफिट्स और क्या है CDN के? इंप्रूविंग द वेब पेज वेबसाइट लोड टाइम. आपका जो वेबसाइट का लोडिंग टाइम है वो बहुत इंप्रूव कर देता है. हार्डली कुछ एक मिली सेकेंड्स रह जाते हैं किसी भी वेबसाइट को लोड करने के लिए. रिड्यूसिंग द बैंडविड्थ कॉस्ट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ कॉस्ट? कीप दिस थिंग इन माइंड. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि व्हेन अ यूजर विजिट अ वेबसाइट, देयर ब्राउजर विल लोड द कंटेंट वाया द इंटरनेट. जैसे सपोज कीजिए मैं किसी वेबसाइट को अगर विजिट करना चाहता हूं, तो मुझे उस विजिट जो मेरा ब्राउजर है उस वेबसाइट के जो कंटेंट्स को इंटरनेट के थ्रू ही लाएगा मेरे ऊपर, मेरे जो ब्राउजर है मेरा. इफ द वेबसाइट डज नॉट यूज अ CDN, देन व्हाट विल हैपन? ऑल द कंटेंट विल कम फ्रॉम द ओरिजिनल सर्वर. गॉट इट? जब भी कभी भी आपकी अगर वेबसाइट की अगर हम बात करें, अगर वेबसाइट आपने फेच की है या यूज कर रहे हैं आप, तो हमेशा जो कंटेंट्स हैं ओरिजिनल सर्वर से ही वापस आएंगे. एंड यू नो, जो होस्टिंग कंपनीज होती हैं वो वेबसाइट के लिए जो चार्जेस लेती हैं या बैंडविड्थ के लिए हम बोले चार्ज लेती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गोइंग आउट. जितना डेटा गोइंग आउट यानी बाहर जाएगा उतना उसके चार्जेस बढ़ते जाएंगे. बैंडविड्थ जो है, अगर लिमिटेड बैंडविड्थ होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉज आ जाएगा वेबसाइट के ऊपर. तो इट मींस दैट इस चीज को रिड्यूस करने के लिए व्हाट वी विल डू CDN. तो CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होगा? लेट्स सपोज दैट कि ज्योग्राफिकली एक सर्वर यहां पर अवेलेबल है, दूसरा सर्वर यहां पर अवेलेबल है, और यहां से आपने CDN पिक किए हैं और आपकी ओरिजिनल वेबसाइट बीच में है कहीं. तो डेटा बाहर यहां से जाएगा, तो इंस्टेड ऑफ कमिंग फ्रॉम द ओरिजिनल सर्वर, ये जो दूसरे सर्वर्स जो CDN की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से डेटा बाहर जाएगा. इफ दिस डेटा इज कमिंग आउट फ्रॉम दीज सर्वर्स, अगर इन सर्वर से डेटा बाहर जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो ओरिजिनल बैंडविड्थ की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वहां से तो डेटा आ ही नहीं रहा, वहां से तो सिर्फ HTML के पेजेस और बाकी का कंटेंट आ रहा है. गॉट इट? So in this way, CDN helps us to reduce the bandwidth cost. Next, we have increased content availability and redundancy. Let's suppose that because of some reason or the other, the CSS or the, we can say, JavaScript files are not available to the client from the original server. Because of some reason, कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है. So in that case, if you are using CDN, तो बेशक डेटा आपके सर्वर से नहीं आ रहा, लेकिन किसी और सर्वर पर जहां पर CDN जो प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से डेटा अवेलेबल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली द स्पीड विल इंक्रीज और कंटेंट अवेलेबिलिटी एंड रिडंडेंसी ये दोनों के दोनों बढ़ जाएंगी. देन वी हैव इंप्रूविंग वेबसाइट सिक्योरिटीज. आप वेबसाइट सिक्योरिटी को भी बना सकते हैं, यहां पर मेंटेन कर सकते हैं. फाइन. सो ये था बेटा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी CDN. कीप दिस थिंग इन माइंड. CDN can not only be done in case of JavaScript or in CSS or in HTML. You can do the CDN of images also, or we can say audio files also. आपके पास अगर images हैं या वीडियो या audio files आपने अगर यूज किए हैं, you can use those videos or those audio files at some different server जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, वहां पर SSD लगा हुआ है सपोज करें, तो automatically still in that case if you are using this technique, the speed of your website will increase manifold. Next we have, ये मैंने कुछ links provide किए हैं CDN के for Bootstrap के लिए प्रोवाइड किए हैं. Bootstrap एक फ्रेमवर्क है CSS का जो हम यूज करते हैं वेबसाइट को डेवलप करने के लिए. फाइन. तो इसके CDNs मैंने कॉपी किए हैं, इनके लिंक ये कहां से हैं, अगर आप भी वेबसाइट बना रहे हैं अगर, तो यू कैन सी हियर कि जस्ट अ मिनट, मैं एक लिंक आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं. या दिस वन. यस. नाउ यू कैन सी हियर, ये आपके सामने एक स्क्रीन है और यहां पर मैं बूटस्ट्रैप CDN get bootstrap.
मोस्टली लोग करते क्या हैं, अगर हम लोगों ने बूटस्ट्रैप में काम करना है, ये बूटस्ट्रैप का साइट है, ये वेबसाइट है, जनरली हम लोग बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर लेते हैं, देन उससे रिलेटेड बूटस्ट्रैप से रिलेटेड जो भी हमारा सीएसएस है या जावास्क्रिप्ट है, ईच एंड एवरी फोल्डर इज अवेलेबल विद अस, एंड यूजुअली हम उस फोल्डर को कॉपी करके अपने सर्वर पर अपलोड कर देते हैं और वहीं से सारा का सारा जो है कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको क्या यूज करना चाहिए? आपको सीडीएन यूज करना चाहिए, और जो लिंक मैंने कॉपी करके दिखाए थे वो ये सारे लिंक्स हैं बेटा। तो पहला जो लिंक है ये कंपाइल्ड एंड मिनिफाइड वर्जन है, ये सीएसएस का। मिनिफाइड मींस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अदरवाइज आप अपनी खुद की फाइल्स का जो मिनिफाइड वर्जन है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट का भी ये सीडीएन यहां पर प्रोवाइडेड है। तो इससे क्या होगा, यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर वेबसाइट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। फाइन। देन वी हैव yeah then we have next important factor, that is robots.txt. Now what is robots.txt file? This file is very important from SEO point of view. The robot.txt file, also known as robots exclusion protocol or standard, is a text file that tells web robots which page on your site to crawl. सपोज कीजिए आपकी वेबसाइट जो है, आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस अवेलेबल होंगे। इफ ए नंबर ऑफ पेजेस आर अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट, तो ऑटोमेटिकली जो गूगल का क्रॉलर है या गूगल का जो रोबोट है वो क्या करेगा, वो क्रॉल करेगा, मतलब वो स्कैन करेगा आपके पेजेस को। आपके सारे पेजेस ए टू जेड स्कैन होंगे कि क्या क्या कंटेंट, तभी तो वो गूगल के पेज पर उसका जो डिटेल्स है शो होगा ना। अगर उसने वो सारे जो कंटेंट्स है आपके वेब पेजेस के देख रखे हैं, तभी वो दिखाएगा कि ये वेब पेजेस में ये है। और ये बहुत फास्ट स्पीड से क्रॉलिंग कर लेता है, उसको स्कैन कर लेता है, उसको रीड कर लेता है। तो इट मींस दैट robots.txt फाइल ये डिसाइड करती है विच पेजेस यू वांट टू अलाउ एंड विच पेजेस यू वांट टू डिसअलाउ। मतलब गूगल क्रॉलर कौन कौन से पेजेस को आपके रीड करे और कौन कौन से पेजेस को छोड़ दे। ये काम करने के लिए ये जो इंफॉर्मेशन है जिस फाइल में हम रखते हैं, दैट फाइल इज कॉल्ड robots.txt फाइल। ये भी बताता है कि कौन कौन से पेजेस को क्रॉल करना है। क्रॉल करने का मतलब है उसको स्कैन करना है, उसको रीड करना है। और ये फाइल ये भी बताती है कि कौन कौन से पेजेस जो हैं वो स्किप करने हैं, उनको रीड नहीं करना। आप बोलोगे सर व्हाट इज द बेनिफिट कि हम उसको डिसअलाउ करें। स्टूडेंट्स कीप दिस थिंग इन माइंड कि जब भी कभी हम लोग वेबसाइट अपलोड करते हैं तो वहां पर हमने connect.php करके अगर PHP यूज कर रहे हैं, तो connect.php या कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए वी हैव यूज्ड सम फाइल, or in that file we have to specify the database name, you have to specify the password, you have to specify the username, means each piece of information should be available there. तभी आप डेटाबेस के साथ वेबसाइट्स को अपनी वेबसाइट का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फाइन, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होगा। तो क्या ये ठीक रहेगा, प्रोग्रामिंग अच्छी रहेगी कि आप गूगल को इन्फॉर्म कर रहे हो भैया मेरे पासवर्ड यहाँ पर पड़े हुए हैं, यू कैन गो थ्रू दिस? नो, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो यू हैव टू डिसअलाउ द क्रॉलर कि भाई आपको ये मेरे पेजेस को बिल्कुल भी स्कैन नहीं करना, बिल्कुल भी रीड नहीं करना, छोड़ दो इनको। इन द सेम मैनर कई बार क्या होता है कि वी हैव कीप ओवर देयर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड्स ऑफ आवर वेबसाइट आल्सो। कीप दिस थिंग इन माइंड। कोई भी जो वेब डेवलपर होगा ना, कभी भी किसी साइट में प्रॉब्लम आ जाती है तो जो क्लाइंट से पूछने नहीं जाता कि व्हाट इज योर यूजर नेम, व्हाट इज योर पासवर्ड, नो, कभी नहीं पूछने जाएगा वो, क्योंकि क्लाइंट साइड पे क्योंकि जब बैकएंड पे हम लोगों को काम करना पड़ता है तो हमें या तो कुछ ना कुछ मेथड ऐसा यूज करना पड़ता है कि हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड उस वेबसाइट का अपने पास सेव करके रखें। तो उसके लिए भी हम लोग कुछ फाइल्स बैकएंड पे जनरेट करके रख लेते हैं और उस फाइल के अंदर हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड उसमें डाला हुआ होता है। एंड इन फ्यूचर व्हेनेवर वी वांट टू do some kind of amendment in the website, तो हम वहीं से पासवर्ड एंड यूजर नेम पिक करके और वहीं से उसको जो भी उसको रिपेयर करना होता है, वेबसाइट को जो भी करना होता है, वी कैन। तो इट मीन्स दैट दैट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्लेस्ड ओवर देयर। इंटरनेट उसी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली
ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी लीक नहीं होनी चाहिए, तो इसको भी हमने डिस अलाउ करना है, इसको भी हमने अलाउ नहीं करना क्रॉलर को कि वो इसको हमारे इन पेजेस को भी देख सके। फाइन। तो ये सारे टैक्टिक्स और ये सारे जो रूल्स हैं जो इंप्लीमेंट किए जाते हैं वो एक फाइल में रूल्स मेंशन किए जाते हैं, दैट फाइल इज कॉल्ड robots.txt फाइल। दैट इज द रीजन दिस फाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एससीओ पॉइंट ऑफ व्यू। कई इंपॉर्टेंट पेजेस भी होते हैं जो हमें शो करवाने पड़ते हैं कि गूगल को कि ये हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, इसमें कंटेंट कुछ इस टाइप का है कि यू कैन वी कैन से फ्लड दिस कंटेंट ओवर द इंटरनेट, जिससे हमारी एससीओ रैंकिंग बढ़ जाती है। फाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके कंटेंट्स कैसे होते हैं। इस फाइल के robots.txt फाइल के कंटेंट्स ऑफ दिस फाइल ये कुछ इस टाइप के होते हैं। जस्ट 2-3 लाइन का कोड होता है, कोड भी नहीं होता, इवन कई बार आप नोटिस करोगे सिंपल वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं वहां पर, लाइक यूजर एजेंट स्टार, बस ये कंटेंट होगा, या डिस अलाउ स्लैश। अब इनके मीनिंग क्या है, लेट्स सी, इसको हम देख लेते हैं कि इनके मीनिंग्स क्या हैं इन जो कंटेंट्स जो मैंने लिखे हैं वहां पर। देखिए एग्जाम्पल्स हैं कुछ ये robots.txt फाइल के। फर्स्ट वन इज टू एक्सक्लूड ऑल द रोबोट्स फ्रॉम द एंटायर सर्वर। ओके, अगर हम सारे जितने भी रोबोट्स हैं, चाहे वो गूगल का हो या बिंग का हो, ओके, या कुछ और भी रोबोट्स अवेलेबल होते हैं, क्रॉलर्स होते हैं, उन सबको स्टॉप करना है अगर, तो वी हैव टू जस्ट राइट यूजर हाइफन एजेंट कॉलन स्टार। इसका मतलब क्या है, यूजर एजेंट मतलब यूजर एजेंट मतलब कौन सा आपका क्रॉलर है या कौन सा आपका बॉट है जिसको आप मना करने वाले हो। मैंने बोला स्टार, स्टार मतलब सारे। देन डिसअलाउ, डिसअलाउ किसको करना है, मैंने कोई नाम स्पेसिफाई नहीं किया, जस्ट एक स्लैश लगा दिया, मतलब मैं पूरी पूरी वेबसाइट को ही नहीं चाहता कि कोई मेरी क्रॉल करे। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। देन है टू अलाउ ऑल द रोबोट्स टू assess all the web pages over the website। तो उसके लिए सिंपल आपको लिखना है यूजर एजेंट हाइफन एजेंट देन स्टार। इट मींस कि सारे जितने भी बॉट्स हैं उन सबको मैंने परमिशन दे दी। और डिसअलाउ क्या किया, डिसअलाउ क्या किया, कुछ नहीं लिखा, मतलब कुछ भी डिसअलाउ नहीं करना, सारा कुछ विजिबल होना चाहिए इन रोबोट्स को। तो ऑटोमेटिकली ये गलत है, ये वैसे मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि कई चीजें जो मैंने बोला जैसे कि connect.php फाइल या इस टाइप की जो फाइल होती है उसको ब्लॉक करना जरूरी होता है। सो वैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए है ताकि आप इसकी कोडिंग जब करें तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज हो रही है यहाँ पर। फाइन। देन वी हैव टू एक्सक्लूड ऑल रोबोट्स फ्रॉम पार्ट ऑफ द सर्वर। आप कुछ फाइल्स चाहते हैं या कुछ फोल्डर चाहते हैं, अभी ये फोल्डर में एक्सेस ना करें। सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, आपको लिखना है यूजर एजेंट स्टार, मतलब सभी रोबोट्स को हम बोल रहे हैं भाई डिसअलाउ स्लैश सीजीआई हाइफन बिन, ये वाला फोल्डर को आपने एक्सेस नहीं करना। डिसअलाउ स्लैश टीएमपी स्लैश टेम्प वाला फोल्डर आपने और उसके अंदर की जितनी भी फाइल्स हैं उसको क्रॉल नहीं करना। देन डिसअलाउ स्लैश जंक स्लैश, तो जो जंक वाला मेरा फोल्डर है उसको भी आपने कुछ भी उसके कंटेंट जो है उसकी क्रॉलिंग नहीं करनी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एंड कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे एक स्पेसिफिक मेरा कोई बॉट है, मैं उसी को चाहता हूं कि ये स्कैन ना करे क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेशन ले जाता है मेरे पास से। गॉट इट? कई बार क्या होते हैं स्टूडेंट्स की कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं मलेशियस, वो आपकी वेबसाइट से डेटा फेच करके ले जाती हैं। ये वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जितना भी डेटा होता है हम उसको फेच करके बड़ी आसानी से, इवन पाइथन में हम लोग ये काम कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग इसको बोलते हैं। तो सारा का सारा डेटा फेच करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, जहां पर भी चाहें उसकी एक्सेल फाइल बना सकते हैं या उसको जैसे भी हमने डेटा एनालिसिस करनी है उसकी कर सकते हैं। तो कुछ क्रॉलर्स को स्टॉप करने के लिए कि वो हमारा डेटा को क्रॉल ना करें, क्रॉलिंग ना कर पाए, तो उसके लिए हम लोगों को स्पेसिफिक उसका नाम स्पेसिफाई करना होगा, जैसे यूजर हाइफन एजेंट कॉलन बैड बॉट ऐसे कुछ नाम दे दिया मैंने। यहां पर भी ये वाला बॉट जो है, ये क्रॉलर जो है, डिसअलाउ स्लैश मतलब सारी वेबसाइट को मना कर दिया कि वो कभी भी क्रॉल ना करे इस वेबसाइट को। एंड द नेक्स्ट वन इज टू अलाउ ए सिंगल रोबोट, अगर सिंगल रोबोट को ही अलाउ करना है, सिर्फ गूगल ही क्रॉलिंग कर सके बाकी कुछ भी क्रॉलिंग ना कर सके, तो उसके लिए यूजर एजेंट गूगल और उसके बाद डिसअलाउ
तो गूगल के लिए तो हमें डिसअलाउ कर दिया, कुछ भी नहीं, मतलब वो सब कुछ क्रॉल कर सकता है, लेकिन उसके बाद लिखा यूजर एजेंट स्टार, मतलब गूगल को छोड़ के बाकी सारे डिसअलाउ स्लैश, मतलब उन सब के लिए स्लैश लगा दिया कि भाई आप कुछ भी जो है रूट ही डाल दिया मैंने भी, रूट ही आप जो है क्रॉल नहीं कर पाओगे। अगर रूट ही नहीं कर पाएगा तो अंदर के पेजेस वैसे ही उसकी क्रॉलिंग नहीं हो पाएगी। सो दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल, फाइन। देन कुछ स्पेसिफिक पेजेस रहते हैं, जैसे कुछ स्पेसिफिक पेजेस हैं उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन है, हम चाहते हैं कि ये इसको क्रॉल ना करे, तो फॉर दिस वी हैव टू जस्ट राइट यूजर एजेंट, यूजर हाइफन एजेंट स्टार, एंड देन वी विल राइट डिसअलाउ स्लैश फोल्डर, जो उसके अंदर जो फोल्डर के अंदर कुछ जंक डॉट एचटीएमएल फाइल है या फू डॉट एचटीएमएल फाइल है या बार डॉट एचटीएमएल फाइल है, ये उन तीनों फाइल्स को मैंने यहां पर डिसअलाउ कर दिया, तो ऑटोमेटिकली अब कोई भी बॉट जो है इन तीन फाइल्स को देख नहीं पाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट वी हैव साइट मैप। अब साइट मैप याद रखना कि साइट मैप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक ब्लूप्रिंट होता है आपकी वेबसाइट का कि आपकी वेबसाइट में कितने लिंक्स हैं, कितने पेजेस हैं, कौन से पेजेस कहां पर पॉइंट कर रहे हैं। जब वो गूगल क्रॉलर आएगा ना आपकी साइट को विजिट करने के लिए, तो सबसे पहले वो साइट मैप को ही पकड़ता है, ढूंढता है। अगर साइट मैप नहीं मिलता तो इसका मतलब दिस इज वीकनेस ऑफ योर वेबसाइट फ्रॉम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू। तो इट मींस दैट कि आपका जो वेबसाइट है उसके ऊपर साइट मैप भी अवेलेबल होना चाहिए। ओके, तो साइट मैप ये सर्च इंजन को बचाते हैं कि कौन सा पेजेस कहां पर अवेलेबल है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। कुछ पेजेस ऐसे होते हैं साइट मैप में, कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिसमें दूसरे पेजेस के लिंक्स अवेलेबल होते हैं। क्लियर? तो ये सारी इंफॉर्मेशन साइट मैप के अंदर अवेलेबल होती है, इसीलिए साइट मैप होना चाहिए। और साइट मैप आप तीन तरह से साइट मैप तैयार कर सकते हैं। XML साइट मैप जो नॉर्मल साइट मैप होता है, देन वी हैव HTML साइट मैप, एक HTML में भी साइट मैप बनाते हैं, एंड थर्ड वन इज इमेजेस साइट मैप। इमेजेस साइट मैप ये बताता है कि कौन कौन सी इमेज आपकी वेबसाइट के ऊपर कहां कहां पर पड़ी होती है। इफ यू आर प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन टू द गूगल, तो ऑटोमेटिकली गूगल को पता चल जाएगा कि कौन कौन से पेजेस कहां पर पड़ रहे हैं, उसको हर चीज स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अपने एल्गोरिथम के बेसिस पे वो सर्च कर लेते हैं कि किस पेज की कितनी इंपॉर्टेंस है, और उसी को रैंक दे करके सर्च इंजन में जो है उसकी विजिबिलिटी शो कर देते हैं। तो इट मींस व्हाई आर साइट मैप्स इंपॉर्टेंट? सर्च इंजन्स लाइक गूगल, याहू, बिंग, ये कुछ सर्च इंजन्स हैं। हमने तो गूगल के बारे में ज्यादा सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन याहू एंड बिंग भी हैं। यूज दीज साइट मैप्स फॉर डिफरेंट पेजेस ऑन द साइट। फाइन। अब ये कुछ टाइप्स हैं साइट मैप की। जैसे फर्स्ट टाइप मैंने बोला नॉर्मल एक्सएमएल साइट मैप। ये नॉर्मल एक्सएमएल साइट मैप है, एक्सएमएल में बनाते हैं, एंड साइट मैप को सबमिट भी करना होता है। वो कैसे सबमिट करना है हम अभी इसको करके बताएंगे, कैसे सबमिट करना है साइट मैप को। देन ये नॉर्मल एक्सएमएल फाइल होती है। आप लोग जो अभी बीसीए स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होगा अभी एक्सएमएल फाइल का, लेकिन जो एमसी के स्टूडेंट्स हैं या जो कर चुके हैं या जो करने वाले हैं, इनके आगे कोर्स में एक्सएमएल का कुछ टॉपिक है तो वो समझ पाएंगे वहां पर। एक्सएमएल इज जस्ट लाइक प्लेन टेक्स्ट की तरह होती है जैसे कि एचटीएमएल है, लेकिन एक्सएमएल में हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर यानी मशीन भी रीड कर सकती है बड़ी आसानी से, एंड साथ में ह्यूमन बीइंग भी रीड कर सकते हैं। और इसमें जस्ट लाइक जैसे एचटीएमएल में हम टैग यूज करते हैं ना, h1 टैग, देन वी हैव h/h1 टैग, h2 टैग /h2 टैग, ऐसे ही टैग्स एक्सएमएल में भी बनाए जाते हैं, लेकिन वहां पर यूजर अपने हिसाब से टैग्स क्रिएट कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल EMP नंबर, देन उसमें एक हम लोग डेटा डालेंगे /EMP नंबर। अब ये EMP नंबर कोई HTML का तो कोई टैग है नहीं है, लेकिन XML में आप ये टैग क्रिएट कर सकते हो डेटा प्लेन टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, क्योंकि इस टेक्स्ट को बड़ी आसानी से कंप्यूटर भी रीड कर सकता है और बहुत इजीली, वेरी इजीली ह्यूमन बीइंग कैन आल्सो रीड। सो नॉर्मल XML site map can be created for your website, and keep this thing in mind कि ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको साइट मैप खुद बनाना है, खुद क्रिएट करना ना। और tools are available on the Google, and I will discuss some tools also with you people. Then we have video site map. Video site map क्या करता है? Used specifically to help Google understand video content on your page. कहां कहां पर आपका वीडियो कंटेंट अवेलेबल है आपके पेज के ऊपर, ये वीडियो साइट मैप शो करता है। Then news sitemap is there, then image sitemap is there with their own specific importance. Keep this thing in mind.
साइट मैप अगर किसी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, इट मींस दैट यू आर लूजिंग सम पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अंडरस्टूड? तो इट मींस दैट कि साइट मैप भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और आपको साइट मैप, अगर किसी ने वेबसाइट डेवलप किया है, उसका साइट मैप नहीं अपलोड किया है, तो यू हैव टू सबमिट द साइट मैप ऑल्सो। ये कैसे सबमिट करना है ये हम लोग अभी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। नेक्स्ट वी हैव टूल्स फॉर जनरेटिंग द साइट मैप। ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है यहाँ पर, ये कुछ टूल्स हैं। इन टूल्स को यू कैन यूज टू डेवलप, यू क्रिएट योर वेबसाइट, योर साइट मैप्स। आपको करना क्या होगा, इन टूल्स को आपने यूज करना है। आपने साइन इन करके यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट, और आप अपनी वेबसाइट सबमिट कीजिए, उसका सबमिट कीजिए, एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट द साइट मैप इन टर्म्स ऑफ वी कैन से XML or in terms of HTML. But please keep this thing in mind. XML sitemaps are very important from SEO point of view instead of HTML sitemap. So keep this thing in mind. HTML type जो sitemap है उसको थोड़ा avoid करना, और XML जो sitemap है उनको आप create करके उनको upload करना, so वो ज्यादा beneficial है, उससे score भी बढ़ता है। Fine. Then है site रजिस्ट्रेशन। नाउ साइट रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज दैट कि आपने कुछ साइट जो है, आपने वेबसाइट क्रिएट किया, और अभी आपने किसी को नहीं बताया कि आपकी वेबसाइट बनी हुई है, इवन गूगल को भी नहीं पता, बिंग को, याहू को, ये भी सर्च इंजन हैं, इनको किसी को रजिस्टर ही नहीं किया, आपने बताया ही नहीं कि ये साइट हमने कुछ डोमेन परचेज किया हुआ है, इसके ऊपर हमारी साइट मैप, इसके ऊपर हमारा रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी एग्जिस्टेंस किसी को नहीं पता। So whenever you are developing some website, your first job is to create the website. आप उसको रजिस्टर करवाओ, गूगल के अंदर जाकर के रजिस्टर करवाओ। कैसे करना है लेट्स सी। देखिए आप, मैं करके दिखाता हूं लाइव इसमें। यहां पर है सर्च, आपको लिखना है एड्रेस बार में सर्च कंसोल गूगल। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, दीज लिंक्स विल बी अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें जो सेकंड लिंक है ना, वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल, इसको क्लिक कीजिए आप। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यू विल गेट दिस पेज। ये याद रखना, कीप दिस थिंग इन माइंड, कि ये जो पेज जो डिस्प्ले हुआ है, ये इससे पहले आपका गूगल के अकाउंट में लॉग इन करना जरूरी है। ओके, यू मस्ट हैव ओपन्ड जीमेल और व्हाटएवर, उसमें गूगल अकाउंट में आपने लॉग इन किया होना चाहिए। फाइन। उसके बाद जब ये पेज आपके सामने अवेलेबल होगा, अब इसको कैसे आपने करना है, इसका रजिस्टर कैसे करना है गूगल के ऊपर, तो यहां पर देखिए 2 मेथड्स हैं रजिस्टर करने के लिए। एक तो है डोमेन और दूसरा है URL प्रीफिक्स। ना दोनों में फर्क क्या है पहले मैं ये बता दूं, उसके बाद फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। डोमेन रजिस्ट्रेशन का मतलब ये रहता है कि इफ यू हैव सम वेबसाइट से abc.com, abc.com वेबसाइट जो है उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स अवेलेबल होंगे, उन फोल्डर्स में बहुत सारे पेजेस अवेलेबल होंगे। अगर आप चाहते हो सिंगल गो में पूरी की पूरी वेबसाइट आपके रजिस्टर हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि इन ए सिंगल गो आपकी कंप्लीट वेबसाइट रजिस्टर हो जाए, इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस अप्रोच। On the other hand, if you want to register some of your pages, कुछ pages को आप register करना चाहते हैं, say abc.com is your website and in that website we have aboutus.php, we have this page. abc.com is your website, ये main होगी ऊपर website, इसके अंदर आपने एक पेज बनाया aboutus.php, ये पेज बनाया, और अगर आप इसको चाहते हो रजिस्टर करवाना तो उसके लिए you have to use URL prefix यानी second method, ये वाला method। क्लियर है यहां तक? तो इट मींस दैट कि अगर आप ये जो डोमेन वाला जो फर्स्ट मेथड, इफ यू आर यूजिंग दिस मेथड, तो उस केस में आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर जितने पेजेस हैं सब कुछ आपका रजिस्टर हो जाएगा। जैसे जैसे आप कंटेंट उसमें अपलोड अपनी वेबसाइट में करते जाएंगे, आपके सारे पेजेस की लिस्टिंग जो है गूगल के सर्च इंजन में ऑटोमेटिकली होती जाएगी। गॉट इट? इंडिविजुअली आपको हर पेज को जाकर के गूगल को बताने की जरूरत नहीं है कि आई हैव दिस पेज, आई हैव दिस पेज, नो, बट इन दिस केस DNS वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। अब DNS वेरिफिकेशन कैसे करनी है वो देखते हैं हम लोग, पहले इसको हम देख लें कैसे करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, एक्सक्यूज मी, अगर सबको समझ में आ गया है, से यस इन द चैट बॉक्स।
ऑल ऑफ यू राइट यस इन द चैट बॉक्स अगर सबको समझ में आ गया यहां तक, अदरवाइज किसी की कोई क्वेरी रहेगी तो आई विल सॉल्व. डू राइट यस इन द चैट बॉक्स. एमसीए के स्टूडेंट्स यस, आप तो वेबसाइट्स कर रहे हैं अभी काम, एमसीए एंड बीसीए के स्टूडेंट तो काइंडली वो जरूर मेंशन करें अगर कुछ उनको नहीं समझ में आया, अदरवाइज राइट यस इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड, ऑलमोस्ट काफी स्टूडेंट्स यही बोल रहे हैं यस उनको समझ में आ गया. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. चलिए अब आगे मूव करते हैं. इसको मैं लाइव करके दिखाता हूं एक वेबसाइट को रजिस्टर करके. फाइन, तो यहां पर जाना है हमने. ये जो ऊपर मेन्यू बार है 3 लाइंस हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर. पहले इसका जो इंटरफेस था थोड़ा डिफरेंट था, अभी इन्होंने इंटरफेस चेंज कर दिया है. तो यहां पर है मेन मेन्यू के अंदर नीचे देखिए सर्च प्रॉपर्टी, तो इसको क्लिक कीजिए. ये नीचे 2 वेबसाइट्स हैं, geniuseagle.com एंड www.geniuseagle.com. फाइन, कीप दिस थिंग इन माइंड. ये दोनों मेरी वेबसाइट थी पहले कभी किसी टाइम में, मैं इन दोनों वेबसाइट्स, मतलब वेबसाइट एक ही है. अच्छा एक और बात यहाँ पर भी फ्यूचर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. अच्छा किया गूगल ने मुझे ये शो कर दिया कि ये ऐसा होता है यहाँ पर. देखिए वेबसाइट एक ही है geniuseagle.com, लेकिन ये शो 2 कर रहा है. एक कर रहा है www.geniuseagle.com, एक है geniuseagle.com. इट मीन्स दैट कोई भी क्लाइंट किसी भी वेबसाइट को इन 2 मेथड से असेस कर सकता है. फाइन, कोई भी क्लाइंट इस वेबसाइट को इन 2 मेथड से असेस कर सकता है. इसके अलावा और भी मेथड होते हैं, https:// देन www.geniuseagle.com, इस तरह से भी असेस की जा सकती है. फाइन, तो वेबसाइट एक है लेकिन 3-4 मेथड से सेम चीज को हम लोग असेस कर रहे हैं, सेम चीज को असेस कर रहे हैं. तो गूगल कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, सर्च इंजन, भाई ये वाले कंटेंट तो उसके ऊपर है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग थोड़ी है, वो तो एक मशीन है. अगर वो मशीन है तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि geniuseagle.com के ऊपर भी वही वाले कंटेंट आ रहे हैं, www.geniuseagle.com के ऊपर भी वही वाले कंटेंट आ रहे हैं, https:// www.geniuseagle.com के ऊपर भी यही कंटेंट्स आ रहे हैं. अगर ऐसे कंटेंट्स आ रहे हैं तो ये तो गलत बात है, कंफ्यूज हो गया. अगर बंदा कंफ्यूज हो गया तो जल्दी थोड़ी काम कर पाएगा. तो इट मीन्स दैट वी हैव टू रिमूव दिस कंफ्यूजन ऑल्सो. कैसे रिमूव करनी है ये कंफ्यूजन, अभी नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड्स रहेंगी उसमें बताऊंगा. अभी फिलहाल इसमें हम जो काम कर रहे हैं वो काम करते हैं. तो बेटा यहां पर जा करके आपको ये जो ऐड प्रॉपर्टी बटन है, ये तो पहले ही रजिस्टर्ड हुई पड़ी है तो इनको नहीं करेंगे हम. ऐड प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे आप, तो यहां पर एक सिलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप कुछ ऐसा आ जाएगा और यहां पर वो मुझे बोलेगा कि यू हैव टू टाइप योर डोमेन नेम. लेट्स सपोज दैट डोमेन नेम इज srtut.com. कंटिन्यू, ये पहले वैसे मैं रजिस्टर कर चुका हूं, वेरीफाई करेगा इस प्रॉपर्टी को ये. फाइन, वेरीफाई करने के बाद यहां पर ये जो टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट मैं कॉपी करूंगा यहां से. क्लियर, कॉपी किया मैंने यहां पर. अब ये टेक्स्ट मेरे पास अवेलेबल है. फाइन, मैंने ये किया हुआ है ऑलरेडी, इसको रजिस्टर किया हुआ है. तो मैं आपको अब कैसे कहां पर ये पेस्ट करना है कंटेंट मैं वो बताने वाला हूं. ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग सी पैनल में जाते हैं हमारी वेबसाइट के. लेट्स सी, ये लाइव है जो वेब सर्वर मैं दिखा रहा हूं आपको. ओके, जब भी आप कभी वेबसाइट बनाएंगे उनको अपलोड करेंगे तो जो डेवलपर्स होते हैं वो इसी तरह से करते हैं. फाइन, इंडस्ट्री में कुछ खास नहीं होता. इंडस्ट्री में जस्ट वो एक प्रैक्टिस कर करके उनका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि जिस काम को हम लोग जो टीचिंग फैकल्टी है थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम अपने फील्ड में मास्टर होते हैं और वो प्रैक्टिकल फील्ड में मास्टर होते हैं. तो हम लोग प्रैक्टिस साइड बाय साइड करते जाएंगे तो हम भी उनके जैसे बन सकते हैं, बड़ी आसानी से वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं. तो अभी फिलहाल मैं करके दिखा रहा हूं जी आपको srtut.com/c पैनल. तो मैं इसके सी पैनल में आ रहा हूं यहां पर, और यहां पर जाकर के जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था, अब उस टेक्स्ट को यहां ओपन करते हैं. ये सी पैनल ओपन हो चुका है यहां पर. वो मुझसे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं कुछ यूजर नेम एंड पासवर्ड देखता हूं. भाई मेरा यूजर नेम पासवर्ड क्या है, SCO, जस्ट ए मिनट, ये सी में पेस्ट कर देता हूं. फाइन, तो देखिए लाइव सर्वर में ऐसा सी पैनल होता है, वेबसाइट जहां अपलोड्स होती हैं
ये ऐसा सी पैनल होता है ये लाइव सर्वर में। फाइन, ये कुछ होता है वहां पर, जिसने नहीं देखा, पहले प्रोग्रामिंग में नहीं किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं लाइव सर्वर कुछ ऐसा होता है। इसमें सब कुछ होता है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, देन वो मूडल जो आप लोग यूज करते हैं, वो मूडल भी हम लोग यहीं पर क्रिएट कर सकते हैं। अपना मूडल आप खुद का आप अपना अगर यूजर नेम एंड होस्टिंग अगर आप ले लेते हैं, डोमेन नेम एंड होस्टिंग ले लेते हैं, तो आप खुद का अपना मूडल जो है वो इंस्टॉल करके और पूरा का पूरा प्रोसेस सिस्टम जो है चला सकते हैं। गॉट इट? तो ये कैसे करना है वो मैं आपको ये भी बताऊंगा आने वाले टाइम में, जब हम वेबसाइट से रिलेटेड कुछ काम करेंगे। तो अभी फिलहाल हमने जाना है जी, ये है डीएनएस जोन एडिटर। फाइन, यहां पर जाएंगे हम लोग। तो ये कुछ उसने दिखाया है भाई यहां पर। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूं क्योंकि इमेजेस ज्यादा आ रही हैं। यस, इसमें बेटा देखिए लिखा है मैनेज, आप इसको क्लिक कीजिए तो ये मैनेज कर रहा है यहां पर। देखिए, तो जो टेक्स्ट कॉपी हुआ था ना, वो टेक्स्ट अब यहां पर हमने पेस्ट करना है। कैसे करना है? सबसे पहले ऑल लिखा है, आप यहां पर ऑल लिखा हुआ है, जस्ट ए मिनट। या स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए ये ऑल है, ए है, सी नेम है, एमएक्स है, टीएक्सटी, आप टीएक्सटी को क्लिक कीजिए। फाइन, टीएक्सटी को क्लिक करने के बाद जस्ट टेक्स्ट वाला जो है सारा का सारा एंट्रीज हमारे पास आ चुकी हैं। यहां पर हम लिखेंगे ऐड रिकॉर्ड, इसको क्लिक करते हैं, ऐड रिकॉर्ड। जस्ट ए मिनट, ये थोड़ा सा सर्वर स्लो है, आई थिंक सो। या ये देखिए, ये जो पहला लिस्ट क्रिएट होगी ना यहां पर, उसने कहा है वैलिड जोन नेम। तो यहां पर जोन नेम डाल दो, जोन नेम मतलब आपकी वेबसाइट का नाम, srtute.com। उसके बाद टाइप क्या है इसकी, किस टाइप की फाइल है, टीएक्सटी टाइप की फाइल है। और टेक्स्ट, जो टेक्स्ट वहां से स्टूडेंट्स आपने कॉपी किया था ना, वही टेक्स्ट यहां पर आप पेस्ट कर दोगे। और उसके बाद इसके फ्रंट में जैसे ही आप कॉपी करोगे, मैं पेस्ट करके दिखाता हूं, ये देखिए। और ये जो ऐड रिकॉर्ड है, आप इसको क्लिक कर दो। ओके, फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको यहां से हटा रहा हूं और इसको कैंसिल कर देते हैं। तो जैसे ही आप इतना प्रोसेस करेंगे, तो ये रिकॉर्ड, जैसे ये एंट्री लास्ट में देखिए srtute.com txt, ये मैंने की थी, ये रिकॉर्ड किया था इसका। तो यहां पर इसकी मैंने वेरिफिकेशन की हुई है, साइट की रजिस्टर हो चुकी है अब ये गूगल के साथ। फाइन, आपने तो फिर वो वापस जाएंगे जब यहां पर, तो यहां पर एक मिनट, यहां पर आया था srtute.com। यस, तो जैसे ही आप वो कॉपी कर देंगे ना वहां पर कोड, और वहां से जब वापस आएंगे तो ये वेरीफाई वाला बटन आपको क्लिक करना है। ये वेरीफाई वाला बटन है, इसको क्लिक करना है आपने। जैसे ही स्टूडेंट्स आप इसको क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट ए मैसेज फ्रॉम द गूगल, योर साइट इज रजिस्टर्ड, ऐसा करके कुछ मैसेज आपके सामने आ जाए। फाइन, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर ये प्रोसेस सबको समझ में आ गया है गूगल के ऊपर कैसे वेबसाइट को रजिस्टर करना है, प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। हरी अप, आप सबको अगर समझ में आ गया है कैसे इसको रजिस्टर करना है गूगल में, तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। ये चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक हैं ये, क्योंकि कल को जब यहां से आप हमारे से पढ़ के बीसीए या बीटेक या बीए एमसीए कंप्लीट करके कहीं आप जाएंगे, तो वहां पर खुद आपको इंडिपेंडेंटली ये काम करना होगा, किसी से सीखने जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि यहां से पढ़ने के बाद कोई सेंटर ज्वाइन कर, सेंटर वाला तो ऑलरेडी आपसे कम एजुकेशन है उसके पास, तो उसने तो एक टेक्निकल एस्पेक्ट सीख रखा है। लेकिन आप लोगों को हम लोग इतना कुछ सिखा रहे हैं, आप लोग अपनी कैपेबिलिटीज को जानते नहीं हो, तो आप खुद बिना डरे इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिना डरे लाइव वेबसाइट्स बनाइए, ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। इफ यू रेज योर एक्सपीरियंस, ऑटोमेटिकली आप मार्केट में कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, कुछ भी। मैंने कुछ भी कहीं से ये सीखा नहीं है, सब कुछ जस्ट कुछ वीडियोस, जस्ट कुछ नोट्स एंड दैट्स इट। क्योंकि इस एज में हम किसी सेंटर में तो जाने से रहे ना, तो हम लोग खुद ही सारा स्टाफ जो है हमारा, हम लोग खुद स्टडी करते हैं, खुद एक्सप्लोर करते हैं सब्जेक्ट को, और इसी के साथ हम सीखते हैं। और आप देखिए कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज पहले सिलेबस में भी नहीं होती थी, वो हम उसमें सब कुछ कर चुके हैं। आने वाले टाइम के लिए भी हम लोग रेडी हैं। अगर नोड जेएस, रिएक्ट नेटिव,
रिएक्ट में बात करेंगे या पाइथन में बात करेंगे, तो सब कुछ हमने ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है। अब तो वेट कर रहे हैं कि कभी वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड हो जाए उसका एडवांस वर्जन। ओके, तो आप लोग भी ऐसे ही सीख सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया है गूगल की साइट के ऊपर। अब ये वाला एरर जब हम एसईओ करेंगे तो ये एरर उसमें से रिमूव हो चुका होगा, ये एरर डिस्प्ले नहीं होगा। फाइन, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ये मैंने यही लिंक यहां पर भी डाल रखा था, आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं इन फ्यूचर। देन वी हैव, इसी तरह से गूगल में किया है, इसी तरह से याहू का भी बेटा कंसोल होता है, बिंग का भी कंसोल होता है। वहां पर भी जाकर के सेम मेथड के साथ वहां से भी वो आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, वो टेक्स्ट वापस आकर के अपनी वेबसाइट में आपने डालना है। गॉट इट? और फिर से ये काम चलाना है, तो वहां पर भी रजिस्टर करनी है। जितने ज्यादा सर्च इंजन के ऊपर अपनी वेबसाइट्स को आप रजिस्टर करोगे उतना ज्यादा अच्छा है आपकी वेबसाइट के एसईओ के लिए। फाइन, देन वी हैव रीडायरेक्ट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडायरेक्ट्स? अभी थोड़ी देर पहले देखिए गूगल ने हमें खुद ही वो बता दिया था geniuseagle.com वाला, जिसमें www.geniuseagle भी आया था और genius eagle भी आ गया था, सिंपल। तो ओके, तो रीडायरेक्शन का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग वन यूआरएल टू अ डिफरेंट यूआरएल। सपोज कीजिए आप भी एक वेबसाइट है, ठीक है, आप चाहते हो, मेरे पास ये अर्ल था पहले यूआरएल, मेरे पास ये डोमेन थी पहले, लेकिन अभी मेरे पास ये डोमेन नहीं आई है। क्लियर? या मैं पहले यूज करता था, बिकॉज ऑफ सम रीजन मैंने इसको बंद कर रखा है, अभी मैं इसको चला नहीं रहा इस डोमेन को। तो मैं ये कहता हूं कि भाई कोई क्लाइंट अगर abc.com वेबसाइट के ऊपर विजिट करे तो एबीसी तो चल नहीं रही है, तो उसको रीडायरेक्ट कर दे XYZ के ऊपर, मतलब उसकी XYZ.com खुल जाए वेबसाइट। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीडायरेक्शन। मतलब आपकी एक वेबसाइट है और वो वेबसाइट अभी काम नहीं कर रही है, आपने कुछ टाइम के लिए बंद किया हुआ है, तो आप उसको रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो किसी वेबसाइट के ऊपर, देन आप ये काम कर सकते हो रीडायरेक्ट का। रीडायरेक्ट कई तरह के होते हैं। रीडायरेक्ट का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। कई बार एक और भी बात बताता हूं आपको, कई बार क्या होता है कि आपने कोई पेज क्रिएट किया और इन फ्यूचर उस पेज का नाम आपने बिकॉज ऑफ सम रीजन बदल दिया, चेंज कर दिया। नाउ इफ द नेम ऑफ दैट पेज इज चेंज्ड, व्हाट विल हैपन? लेट्स सपोज दैट वी हैव aboutus.com, ओके, aboutus.php ये पेज है मेरे पास। अब इन फ्यूचर मुझे समझ में आया यार aboutus.php बड़ा अजीब सा अलग सा नाम है, थोड़ा मैं अबाउट हाइफन डाल के अस डाल दूं और .php डालूं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब सारी दुनिया को तो मैं अबाउटस बांट चुका हूं, लेकिन अपनी वेबसाइट के अंदर जा करके वहां पर पेज पर मैंने उसका नाम कर दिया है about-us.php। अब फ्यूचर में जब भी उसको सर्च किया जाएगा तो aboutus.php तो पेज ही है नहीं, सम एरर मैसेज विल बी जनरेटेड। कोई बता सकता है कौन सा एरर मैसेज आएगा? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। यस, जिनको मालूम है प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स कि जो एरर मैसेज आएगा जब आपका पेज वहां पर अवेलेबल ही नहीं है। यस, या रोहित ने, एमसीए स्टूडेंट है रोहित हमारा, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेरी गुड रोहित, गुड। तो 404 एरर जो मैसेज है ये जनरेट होगा वहां पर, क्योंकि ये पेज ही नहीं है वहां पर। ऑटोमेटिकली उसके लिए कुछ ना कुछ वर्क तो हमें करना होगा ना। एक और भी आंसर हमारे पास आ गया है। इट मीन स्टूडेंट्स को नॉलेज है वेबसाइट्स की। वेरी गुड हरमनदीप सिंह, वेरी गुड। हाँ, यही मैसेज आएगा। वेरी गुड। तो इट मीन्स दैट कि उनको भी तो रिजॉल्व करना है। और भी भाई मैसेज बहुत आ रहे हैं, अभी मुझे और स्टूडेंट भी यहाँ मैसेज कर रहे हैं। आई नो कि सबको मालूम है, थैंक यू। तो हम आगे अब चलते हैं, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। जसदीप ने भी बता दिया है, हरमनदीप ने भी बता दिया, रोहित, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। चलो, हाँ, तो मैं बात कर रहा था अब रीडायरेक्ट की। अब वो पेज है नहीं है, ऐसा अगर एरर मैसेज आ जाए तो गूगल जो है वो इसको नेगेटिव पॉइंट्स देता है, तो ऑटोमेटिकली एसईओ में रैंकिंग फिर से पॉइंट्स कम हो जाएंगे उसके। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ रीडायरेक्ट्स। अब 3 रीडायरेक्ट्स होते हैं, 301 रीडायरेक्ट, 302 रीडायरेक्ट, मेटा रिफ्रेश रीडायरेक्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी, जस्ट अ मिनट, या 301 रीडायरेक्ट जो परमानेंटली मूव करवा देगा आपको। ओके, a 301 redirect is a permanent redirect that passes full link equity to the redirected page।
301 refers to HTTP status code for this type of redirect and most। बहुत लंबी वर्डिंग लिखी है, मैं नहीं इसको पढ़ूंगा भाई, मैं सीधा स्टेटमेंट फॉर्मेट बता रहा हूं आपको कि अगर आपने कुछ पेज क्रिएट किया है और आप चाहते हैं 3-4 पेजेस उसको पॉइंट करें, तो आप तीनों चारों पॉइंट्स में, तीनों चारों जो लिंक्स हैं आपके, वहां पर 301 जो है रीडायरेक्ट अप्लाई करते हैं। वो कैसे अप्लाई करना है आई विल टेल यू। तो वो रीडायरेक्ट आप अप्लाई कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली यूजर जब कभी भी किसी वेबसाइट को असेस करेगा, जैसा कि अभी गूगल ने करके बताया था www.geniusseeker.com या www.https://www.geniusseeker.com। तो ये दो डिफरेंट मेथड से मेरी वेबसाइट को असेस करने के। ये अब वेबसाइट नहीं है, अब ये एग्जिस्ट नहीं कर रही वेबसाइट, ये दोनों की दोनों जा चुकी हैं। तो गूगल को बताने के लिए कि दोनों वेबसाइट एक ही वेबसाइट को पॉइंट कर रही है, दैट इज geniusseeker.com, तो उसके लिए आप 301 जो है रीडायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे करना है आई विल टेल यू। देन सेकंड इज 302 रीडायरेक्ट। अब 302 रीडायरेक्ट जो होता है ये टेम्पररी रीडायरेक्ट है। आपने टेम्पररी चेंज करना हो, जैसे इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, या कोई फेस्टिवल सीजन चल रहा है, होली का सीजन चल रहा है मान लेते हैं, और मैंने जब एसईओ किया था, सपोज करें कि मैंने होली सीजन वाला जो पेज है, कुछ पेज तो बनाया होगा ना उसका, तो उसका एसईओ बड़ा अच्छे से किया हुआ होगा, एसईओ फाइन। अब मैं चाहता हूं जब दिवाली आई है तो होली वाले के ऊपर मैंने इतनी मेहनत की हुई है उसका एसईओ करके, पता नहीं क्या क्या किया था, सपोज कीजिए। अब जब दिवाली आई है तो दिवाली वाले कोई पेज जो नया क्रिएट हुआ है जिसके ऊपर अभी एसईओ कुछ खास मैंने किया ही नहीं है, तो इट मींस दैट कि कोई क्लाइंट अगर होली वाले पेज के ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो करके दिवाली वाले पेज के ऊपर आ जाए। तो इससे क्या होगा, एडवांटेज ले सकते हैं हमने जो ऑलरेडी होमवर्क किया हुआ था होली वाले पेज के ऊपर, उसका एडवांटेज हम ले सकते हैं। गॉट इट। तो इट मींस वहां पर मैंने जो रीडायरेक्ट किया है वो एक टेम्पररी रीडायरेक्ट किया है, परमानेंटली नहीं रीडायरेक्ट किया, टेम्पररी रीडायरेक्ट किया है। उसके बाद फ्यूचर में फिर दोबारा से होली आएगी, फिर वहां पर वापस चले जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम 302 रीडायरेक्ट। फाइन। एंड थर्ड रीडायरेक्ट हमारे पास आता है मेटा रिफ्रेश। मेटा रिफ्रेश मैं भी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जो है यूज करता हूं, लेकिन डिफरेंट पर्पस के लिए। अदरवाइज ये आपको कुछ बेनिफिट नहीं देने वाला एसईओ के ऊपर, एसईओ में कुछ खास इतना बेनिफिट नहीं देने वाला। एसईओ के ऊपर पहले वाले जो दो है ना, 301 एंड 302, यही दोनों बेनिफिट देते हैं एसईओ के लिए। रेकमेंडेड नहीं है ये मेटा रिफ्रेश, लेकिन मेटा रिफ्रेश मैं फिर भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आगे चल करके आपने जब भी वेबसाइट बनानी है तो वहां पर कैसे यूज करना है मेटा रिफ्रेश। यू हैव सीन दैट कि आप एक लॉगिन पेज जनरेट करते हो, क्लियर। लॉगिन पेज जनरेट करने के बाद आप उसमें यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हो। कुछ लॉगिन पेजेस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर कुछ एनिमेशन चलनी शुरू हो जाती है। यू हैव सीन एनिमेशन, कुछ वो रिंग घूमना शुरू हो जाता है, बफरिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ स्टार्स घूम रहे होते हैं। इवन हमने जब कॉलेज की वेबसाइट बनाई थी जो एसीएम था, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब डेटा एंटर करते वक्त, कई बार आप जब एंटर करते हो डेटा तो एक सर्कल सा घूमना शुरू हो जाता है और कुछ टाइम बाद वो आपको रूट कर देता है उस पेज पर। तो वहां पर काम में आता है मेटा रिफ्रेश। कैसे हम लोग क्या करते हैं मेटा रिफ्रेश में, कुछ मिली सेकेंड्स बाद, पहले वो प्रोसेस जो दिखाना है वो दिखाना है, कुछ जो आपने ऑपरेशन कर दिया, बटन प्रेस कर दिया, उसके कुछ सेकेंड्स बाद हम लोग नया लिंक वहां पर प्रोवाइड कर देते हैं और उस लिंक के थ्रू रूट हो जाता है, रीडायरेक्ट होता है योर पेज ऑन द न्यू। यहां पर देखिए जैसे इसके कंटेंट मैंने यहां शो किए हैं, यहां पर एक मिनट मैं दिखाता हूं। यस, ये हैं इसके कंटेंट्स, दिस वन। ओके, तो जब भी आपने कभी पीएचपी में जब फाइल बनानी है, जावास्क्रिप्ट में बनाओगे तो फिर तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। अगर वो अपने नोड जेएस या एंगुलर उसमें रिएक्ट वगैरह में बनाओगे तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप पीएचपी में काम करोगे तो इसको, ये जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसको आपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर पीएचपी में इको लगा करके स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसको डालना है। यहां पर http-equuiv is equal to refresh, मतलब रिफ्रेश कर दो।
कंटेंट इज इक्वल टू जीरो, कंटेंट इज इक्वल टू जीरो का मतलब कितने मिली सेकेंड, कितने सेकेंड्स बाद आप चाहते हो कि ये रीडायरेक्ट हो जाए। अगर यहां पर कंटेंट इज इक्वल टू 1 लिखूंगा तो इट मींस आफ्टर 1 सेकेंड नया जो अर्ल है https:/example.com वहां पर 1 सेकेंड बाद शिफ्ट हो जाएगा। एंड इफ यू हैव रिटन हियर 2 तो इट मींस 2 सेकेंड्स बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो बेनिफिट क्या है कि जो एनिमेशन हम दिखाना चाहते थे ना, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोली है कि वो सर्कल घूमता है, वो तो एनिमेशन है, वो तो कहीं पे भी दिखा दो आप। लेकिन ये जो टाइम आप यहां पर मेंशन करोगे उतने सेकेंड्स बाद, वो एनिमेशन चलने के बाद आपका जो लिंक है वो चेंज हो चुका होगा और नए जो पेज है उसके ऊपर आ चुका होगा। इसको बोलते हैं मेटा रिफ्रेश। और मेटा रिफ्रेश मैं फिर बात कर रहा हूं कि रिकमेंडेड नहीं है जो गूगल की तरफ से, क्योंकि ये कोई हेल्प नहीं करता हमारी इसमें एसईओ में। फाइन, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पहले दो रीडायरेक्ट्स हैं 301 एंड 302 उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। आप थोड़ा उसके बारे में भी देख लें कैसे इंप्लीमेंट करना है। देखिए यहां पर है हाउ टू इंप्लीमेंट 301 रीडायरेक्ट, कैसे इंप्लीमेंट करना उसका कोड मैं लिख रहा हूं यहां पर। मेरे पास एक साइट है demologics.in, वेबसाइट का नाम है demologics.in। अब इसको अगर साइट को एसेस करना, ये मेरी साइट नहीं है, वैसे कुछ साइट होगी ये, अगर इस साइट को एसेस करना है तो क्लाइंट उसको एसेस कर सकता है इस तरह से demologics.in लिख करके, या फिर www.demologics.in, या फिर कुछ सीधा लिखेंगे demologics.com, या फिर https demologics.com, इस तरह से। तो 4 मेथड्स हैं एक ही वेबसाइट को असेस करने के। तो इट मींस दैट गूगल तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये 4 डिफरेंट वेबसाइट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, इन सब के कंटेंट्स तो सेम ही है। ओके, जैसे ट्रैफिक आया तो गूगल को समझ में नहीं आएगा यहां भेजूं यहां भेजूं यहां भेजूं, क्योंकि 4 डिफरेंट नेम्स हैं। तो हमें गूगल को बताना पड़ेगा भाई चारों में से कहीं पे भी आ जाए तो तूने सिंगल जो है इसके ऊपर पॉइंट करना है। गॉट इट। तो उसके लिए हम कैसा करेंगे, हम लोग जो अभी मैंने सर्वर ओपन किया था वेब सर्वर, वहां पर कॉपी करेंगे फॉलोइंग कोड। ये जो कोड मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है ये कोड आप वहां पर कॉपी पेस्ट कर देंगे वहां पर। जस्ट ए मिनट में बता रहा हूं, ये वाला कोड। अब ये वाला कोड कहां पर पेस्ट करना है, htss.htss, ये आपकी एक पेज होता है एक आपके वेबसाइट के अंदर। अगर नहीं है तो आपको क्रिएट कर लेना चाहिए, उसका नाम यही देना है .htss। ओके, और इस पेज के अंदर ये जैसे मैंने कोड लिखा हुआ है ज्यों का त्यों ये कोड आप वहां पर कॉपी कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। और यहां पर जहां पर भी demologics.in करके लिखा है या demologics जहां कहीं पे भी आ रहा है वहां पर आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख दीजिए। अगर मेरी वेबसाइट का नाम abc.com है तो मैं यहां पर जहां पर भी demologics.in आ रहा है मैं लिखूंगा वहां पर abc.com। तो ऑटोमेटिकली ये काम हो जाएगा। और फ्यूचर में जब भी कभी पर्सन जो है abc.com को इन 4 नेम्स में से किसी भी नेम से असेस करेगा तो वो पॉइंट जो करेगा वो abc.com के ऊपर ही पॉइंट करेगा जाकर के। फाइन, तो इस तरह से ये रीडायरेक्ट काम करता है। तो ये रीडायरेक्ट किया था हमने, परमानेंट रीडायरेक्ट है 301 के लिए हमने रीडायरेक्ट किया है ये। देन वी हैव ब्रोकन लिंक्स। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोकन लिंक्स? लेट्स सी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कुछ वेब पेज या कोई वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती या कोई वेब पेज एग्जिस्ट नहीं करता और आपने अभी भी वही वाला लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर रखा हुआ है। ओके, कई बार ऐसा होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोसेस नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। तो ऑलरेडी अगर हमने about us.php वाला पेज के ऊपर पॉइंट करवाया हुआ है, लेकिन जो about us.php वाला पॉइंट करवाया हुआ है, लेकिन हम वहां से उस लिंक को रिमूव करना भूल चुके हैं, नहीं किया हमने, तो फ्यूचर में कोई भी क्लाइंट अगर उसको क्लिक करेगा तो वहां पर लिखा आएगा 404 पेज एरर, ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस बात को बोलते हैं ब्रोकन लिंक। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, यू हैव टू रिमूव ऑल द ब्रोकन लिंक्स फ्रॉम योर वेबसाइट। अपनी वेबसाइट से सारे के सारे जितने भी ब्रोकन लिंक्स हैं आप सबने वो सारे ब्रोकन लिंक्स रिमूव करने हैं। गॉट इट?
अगर आप रिमूव नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम होती जाएगी, उसका गूगल स्कोर भी कम होता जाएगा। तो सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो आपने वहां से रिमूव करने हैं। तो ये है ब्रोकन लिंक्स के बारे में। वेबसाइट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, ये ब्रोकन लिंक्स, इन ये सब चीजें उसमें आती हैं। द अर्ल स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट वाज चेंज्ड, आपने कोई स्ट्रक्चर चेंज कर दिया हो, इन कारण से ये जो ब्रोकन लिंक्स जो हैं क्रिएट हो जाते हैं। देन ये मैंने बताया उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है ब्रोकन लिंक्स के, तो उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वेबसाइट की क्वालिटी डाउन हो जाती है अगर ब्रोकन लिंक्स आपकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं तो। देन रीडायरेक्ट टू ए न्यू URL फॉर ए पेज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अबाउट अस वाला जो मैंने बताया था मेथड, कि पहले आपका जो पेज है नाम उसका सपोज कर लेते हैं कि about-us.html पेज अवेलेबल था। अब नया URL जो आ गया है उसका वो था about.html। अगर ये वाला पेज नया वाला है और पुराने वाला about URL वाला था, तो मैं अगर इसको रिमूव करना चाहता हूं तो व्हाट आई विल डू, वही जो हमारी .htss वाली फाइल थी उसी में मुझे ये कोड पेस्ट कर देना है, redirect 301-about-us.html to about.html। तो जब भी कभी गलती से उस बटन को क्लिक करेगा या उस लिंक को क्लिक करेगा जिसमें about-us.html है, तो ऑटोमेटिकली वो about.html के ऊपर ले जाएगा, क्योंकि यहां 301 रीडायरेक्ट हमने अप्लाई कर दिया है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट वी हैव टेम्पररी रीडायरेक्ट। जो मैंने होली और दिवाली वाला ऑफर बोला था, होली वाला पेज जो है उसके ऊपर इतना काम किया हुआ था, एसईओ अच्छे से किया हुआ है। अब मैं चाहता हूं यार होली वाले पेज के ऊपर कोई भी क्लाइंट आए तो उसको मूव करवा के दिवाली वाले पेज पे शिफ्ट करवा देना। तो उसके लिए लिखना है रीडायरेक्ट 302/holyOffers.html, उसके बाद स्पेस छोड़ के /DiwaliOffers.html। तो ऑटोमेटिकली जब भी कोई पर्सन क्लाइंट करेगा होली ऑफर के ऊपर, होली वाला जो लिंक है, तो आपका लिंक जो है रीडायरेक्ट कर देगा आपको दिवाली वाले लिंक के ऊपर। फाइन। एंड देन लास्ट में हमारे पास रीडायरेक्ट चेकर टूल। कैसे हमने चेक करना है कि इस वेबसाइट के ऊपर कुछ रीडायरेक्ट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो ऑटोमेटिकली आप इस टूल को क्लिक करेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि रीडायरेक्ट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। फाइन, ये कुछ कोड है यहां पर मेंशन किया हुआ। और आज के लिए इतना, थैंक यू। अब कुछ फ्यूचर एस्पेक्ट्स भी हैं जो हमने कवर करने हैं इसमें। कंप्लीट ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ जो फ्यूचर में हमने कवर करना है, जो नेक्स्ट हमारे आने वाले एसईओ के सेशंस रहेंगे वो सारे हम करेंगे। देन बैकलिंक्स जनरेटर, कैसे बैकलिंक्स होते हैं, बैकलिंक्स होते कैसे हैं, कैसे जनरेट करने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। देन पीपीसी गूगल, ट्विटर, फेसबुक एंड लिंक्डइन के ऊपर पेपर क्लिक के हिसाब से कैसे हम अपनी वेबसाइट की एनहांस कर सकते हैं जो स्कोर है गूगल के ऊपर। सोशल प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, और एसईओ में क्या क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं या डिजिटल मार्केटिंग में, ये सारा कुछ हम लोग जो आने वाले हमारे एसईओ के सेशंस रहेंगे उसमें हम आपको सब कुछ इसके बारे में सिखाएंगे। तो ये तो था अभी जो सेकंड मॉड्यूल है उसका फर्स्ट सेशन हमारा यहाँ पर ओवर हो जाता है। अब सेकंड सेशन में जो अभी हम आपको मिलेंगे आई थिंक एट 12 o'clock, आई थिंक 15 मिनट्स की ब्रेक सफिशिएंट है मुझे लगता है। और अब ऑनवर्ड जो चलेगा सारा का सारा एसईओ चलेगा। मैं लाइव एसईओ करके दिखाऊंगा आपको एक वेबसाइट का। उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे रैंकिंग जो है इंप्रूव होती है, और कुछ क्रोम की एक्सटेंशन जो है उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसको यूज करना है, ये सब कुछ उसमें हम लर्न करेंगे, सीखेंगे उसके बारे में। तो अभी हम 15 मिनट्स की कुछ ब्रेक ले लेते हैं और 12 o'clock वापस हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।